Good morning, class. Am I audible and visible to you? Am I audible and visible? Good morning, guys. Yes, am I audible? Everybody? Good. So, let us begin from where we left. And I've been told that those who had done art and culture वो भी हमें join करेंगे because आपका कुछ medieval में कुछ बाकी है. Marathas or something is remaining, right? So I, I don't know if that will take long for us to reach. हम मराठास तक तो काफी लेट पहुंचेंगे. But rest of those जो पहले से ancient कर रहे थे with us and with me. Now we are moving into what you call as post Gupta, sorry, post Mauryas, not post Guptas, post Mauryas. So we have to do Sangam age and the Guptas, और फिर उसके बाद post Guptas, followed by Cholas and all that. तो yes, medieval भी मैं ही लूँगा. I am going to take medieval as well. ठीक है. So not an issue in that. Uh, are there any new students who have joined? Are there any new students? ये बाकी सब वही हैं. Are there any new students? नहीं. ठीक है. Yes. Who are there? शिवानी. Uh, आप लोगों का कौन सा those who are new students, can you please tell me what chapter is that or what portion of the syllabus is that is remaining with you guys? आप लोग के साथ कौन सा syllabus बचा हुआ है? Those who are new. So one student is there who is new. Yes. आपका क्या बचा हुआ है शिवानी? What is remaining? May I just know? Good morning, everybody. Yes. What is remaining? Can I know, please? Ancient. What in ancient? Whole ancient is remaining. Ancient and medieval history. I'm not getting. ठीक है. You can message me later on. आप separately मुझे एक बार message कर दीजिएगा. I don't know पूरा कैसे syllabus बचा हुआ है. ठीक है. Fine. So without further delay, let us begin with our class of Guptas. I'm sorry, of Sangam age. So I'm going to share the screen now, and we'll start with the particular topic of Sangam age. Now, before I even start with Sangam age, I'm sure that you all know about the topic or the excavation of. I have already talked with you about the topic and the excavation of Kiladi, right? Or Kizadi. ठीक है. So Kiladi या Kizadi excavation जो है in Tamil Nadu, this has challenged the dates of Sangam. तो ये जो dates जो हम पढ़ रहे हैं 300 BC to 300 AD, अगर all of you, I have given you the timeline और आप सबको पता है that ये age जो है 300 BC का, this is almost coterminous with the time period of the Mauryas. तो मौर्यास के रहते हुए, that is from 321 to 187 BCE, वी से कि साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली डीप साउथ में हम संगम एज को
देखते हैं और संगम एज की उत्पत्ति होती है। इससे पहले, बिफोर दिस, बिफोर संगम एज, व्हाट डू वी कंसिडर वाज देयर इन साउथ इंडिया? तो साउथ इंडिया में इससे पहले हम क्या कंसिडर करते थे, जो साउथ इंडिया में है? एनीबडी? What do we consider before Sangam age? Because Ashoka talks in his rock edicts that there is something called as Tamilkam. अशोका अपने रॉक एडिक्ट में कहते हैं कि तमिड़कम रीजन है, जिससे हम चोला, चेरा, पांड्या जैसी डायनेस्टीज को देखते हैं, रॉक एडिक्ट नंबर 30। सो व्हाट इज देयर बिफोर द संगम एज? Because the first person who talks to us about Sangam age directly is Ashoka himself. तो हमें संगम age से पहले वहां पर क्या मिलता है? एनीबडी? यस, व्हाट डू वी फाइंड? यस प्लीज, एनीबडी? We find what you call as, have we talked about it a bit, megalithic structures. ठीक है, okay, रोहित, you're putting it correctly. So संगम एज से पहले हम साउथ इंडिया में मेगालिथ स्ट्रक्चर्स कहा करते थे, या मेगालिथ कल्चर्स हम कहते थे कि साउथ इंडिया में मेगालिथ कल्चर्स हैं। ठीक है, इससे पहले, यानी कि जब नॉर्थ इंडिया में मान लीजिए 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद थे, या उससे पहले आप 1500 से लेके 600 तक हम कहते थे कि वैदिक एज है। ठीक है, और उससे पहले हम कहते थे दैट देयर इज till 1750 BC we have Indus Valley civilization, और उससे पहले Indus Valley civilization almost, we count the mature period from 2600 or in 2300, whatever you want to you know be comfortable with. मतलब जब ये सारे डायनेस्टीज नॉर्थ में चल रहे थे, जब नॉर्थ में इंडस वैली था, जब नॉर्थ में वैदिक एज आ रहा था, जब नॉर्थ में महाजनपद आ रहा था, तो कहने का मतलब है कि साउथ इंडिया में कुछ था ही नहीं। साउथ इंडिया में मेगालिथ कल्चर्स था, और मेगालिथ कल्चर्स को भी हम ज्यादा नहीं कहते, हम कहते हैं 1000 से ही मेगालिथ कल्चर जो है वो शुरू हुआ है। सो 1000 बीसी से ही शुरू हुआ है, और वो जो है वो 300 के आसपास तक चलता है, और 300 के आसपास तक बीसी तक हम मेगालिथ कल्चर्स पढ़ते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि संगम एज आ रहा है। बेसिकली इस धारणा को चैलेंज किया गया है बाय द कीलाड़ी एक्सकवेशंस और द कीजाड़ी एक्सकवेशंस। Why it is being challenged? Because we found some artifacts from Indus Valley civilization. हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स पाए हैं फ्रॉम द इन संगम एज और इन मदुरई रीजन, जो हमें ये बताता है कि इंडस वैली के समय ही, जब नॉर्थ में इंडस वैली थी, तो कुछ लोग थे किलाड़ी में, मदुरई में, जो इंडस वैली से ट्रेड कर रहे थे। बिकॉज हमें इंडस वैली का वहां पर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स मिलता है, जैसे कार्नेलियन बीड्स, हमें कार्नेलियन बीड्स मिलते हैं इंडस वैली के इन मदुरई। What are those carnelian beads doing there is a matter of grave concern or a matter of huge curiosity among archaeologists. हालांकि एक साइड से कुछ नहीं पता चलता, बट अभी अमॉन्ग हिस्टोरियंस ये डेट को लेकर काफी डिबेट है। ठीक है, इस डेट को लेकर काफी डिबेट है कि भले कुछ मिले या ना मिले, इतना तय है कि देखिए 300 बीसी से आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री नहीं ट्रेस कर सकते। साउथ इंडिया की हिस्ट्री शायद उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री होगी, और वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के परस्पर या उसके साथ में चलने वाली। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है ये डिबेट? दिस इज द इवॉल्विंग करंट अफेयर इन हिस्ट्री। ये हिस्ट्री में इवॉल्विंग करंट अफेयर, हम सालों से नहीं, मैं अगर कहूंगा 2 दशकों से, फ्रॉम डिकेड्स वी आर लर्निंग 300 बीसी टू 300 एडी, 300 बीसी टू 300 एडी, हम वही लर्न कर रहे हैं। ठीक है, बट दिस इज नाउ सेट टू चेंज, और दिस इज चेंजिंग एज वी स्पीक। मे बी आफ्टर 5 years आप देखेंगे कि ये चैप्टर में हमने डेट्स रिवाइज कर दी है। एवरीबडी, यू आर ओके विद दिस? समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट, और या ये जो करंट अफेयर का ये जो पार्ट है, पर्टिकुलरली संगम एज से रिलेटेड? यस प्लीज, एवरीबडी। ऑल ऑफ यू नो अबाउट किलाड़ी एक्सकवेशंस, राइट?
आप सब लोग किलाड़ी एक्सकवेशंस के बारे में जानते हैं, है ना? यस प्लीज। ठीक है। सो बिफोर आई बिगैन विद इट आई वांटेड टू लेट यू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। उसके बाद संगम है क्या, और हम संगम को ट्रेस कैसे करते हैं, संगम लिटरेचर क्या है, एक्सेट्रा। दिस इज लार्जली द क्वेश्चन आउट देयर। संगम का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, सो कॉन्फ्लुएंस ऑफ हियर पोएट्स writing some poems in the form of akkam and puram. That means लव पोएम्स एंड वॉर पोएम्स। ठीक है, तो वॉर पोएम्स होंगे और लव पोएम्स होंगे, जो मिलाकर एक काउंसिल के ट्रेडिशन को बताता है। सो फॉर एग्जांपल, आप लोगों को याद होगा कि बुद्धिज्म में बुद्ध के जाने के बाद 3 काउंसिल्स हो रहे थे। उसी प्रकार से जैनिज्म में भी जो है काउंसिल्स हो रहे थे। ठीक है, 2 काउंसिल्स हो रहे थे जैनिज्म में। दीज वर कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द पोएट्स और कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द स्कॉलर्स एंड राइटिंग समथिंग डाउन। ठीक है, संगम एज में पांड्यन डायनेस्टी के अंदर, और किसी डायनेस्टी के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पांड्यन डायनेस्टी के अंदर जो 3 डायनेस्टीज हम देखते हैं यहाँ पर, चोलास, चेरास, पांड्यास। सो Cheras will be in Kerala region, Cholas will be in upper Tamil Nadu region and Pandyas will be in lower Tamil Nadu region. तो हम जब पांड्यास की डायनेस्टीज को देखते हैं, हालांकि पांड्या की डायनेस्टी पॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, they were not politically that important, but literature wise they led to the coming up of संगम literature। तो पांड्यन डायनेस्टी में लोगों का जमावड़ा हुआ, पर्टिकुलरली पोएट्स का जमावड़ा हुआ, और उन्होंने संगम लिटरेचर की लिखने की शुरुआत की, एंड फ्रॉम देयर वी गेट अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। संगम टेक्स्ट से हमें लॉट ऑफ हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मिलती है। हालांकि इनके लिखने की तरीके, फॉर एग्जाम्पल ये बताया जाएगा कि 8,800 साल से लिखने के ट्रेडिशंस चल रहा है, 7,707 पोएट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द एक्सट्रापोलेशंस टेंडेंसीज विच इज देयर, बढ़ा चढ़ा के बोलने की जो टेंडेंसीज है वो आपको देखेगी, बट जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट्स हैं वो बहुत कम है। तो ये 3 संगम अ, आपके हुए। ठीक है, एंड ये बताया जाता है कि अगस्त्यार सबसे पहले ओल्ड मदुरई में, उसके बाद उनके डिसाइपल्स अगस्त्यार के और नकिरार जो है, ये 3 संगम्स के मदद से इन्होंने संगम लिटरेचर को लिखा। और कब से लिखा कि भैया 9,990 साल से चल रहा है, 8,598 स्कॉलर्स ने अटेंड किया, 197 पांड्यन डायनेस्टी के किंग्स ने इसे पैट्रोनाइज किया। ठीक है, ऑल दैट। देयर इज नो कोरिलेशन विद दी डेट्स। ठीक है, ये जो डेट्स हैं ये संगम के द्वारा दिए गए हैं, वी कैन नॉट कोरैबोरेट दिस डेट्स, so these dates are unsubstantiated। ठीक है, तो ये बस वो, to in order to present a feature of wow and a feature of if I would say awe for a person who is learning these literatures। ठीक, बट इतना तय है कि संगम लिटरेचर पहले ओरल फॉर्म में था, जहाँ जो सब जगह हमें देखने को मिलता है, जैसे वेदास भी पहले ओरल फॉर्म में थे और फिर बाद में रिटन फॉर्म में आए, तो उसी प्रकार से संगम भी ओरल फॉर्म में थे, रिटन फॉर्म में आए। जैसे एपिक्स होते हैं वो भी ओरल फॉर्म में थे, रिटन फॉर्म में आए। और फिर जब ये कंपोज किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पांड्यन डायनेस्टी के पैट्रोनेज में कंपोज किया गया। सो वी गिव क्रेडिट टू द पांड्यास, द क्रेडिट इज वेयर द क्रेडिट इज ड्यू। सो वी गिव क्रेडिट टू द पांड्यास। और फिर बाद में इनके लिटरेचर हमें इनकी सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताती है। ठीक है, तो सवाल आता है कि संगम लिटरेचर है क्या, व्हाट इज दिस संगम लिटरेचर, लेट अस सी दैट। You just have to remember these words. There is no other way to do it. So, for example, the most important and the starting of the Sangam literatures coming from Tolkappiyam or Thirukural, etc. अब Tolkappiyam और Thirukural ये दोनों जो है earliest work of grammars हैं। ठीक है, sometimes also called as fifth Veda. So Tolkappiyam written by Tolkappiyar, Thirukural written by Kurul. These are earliest treatises on Tamil grammar। ठीक है, तो ये तमिल ग्रामर को सबसे इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, सो पाणिनि का अष्टाध्यायी
is establishing Sanskrit grammar. Similarly, you can say that Tolkappiyam is establishing the Tamil grammar, and Thirukural, written by Kurul, is also establishing Tamil grammar. उसके बाद 18 मेजर वर्क्स हैं, जिसमें से 10 पट्टू पट्टू हैं और 8 अट्टुटोगाई है। ठीक है, व्हाट इज पट्टू पट्टू? डिस्क्रिप्टिव पोएम्स, एंड अट्टुटोगाई इज एंथोलॉजीज और लव पोएम्स। ठीक है, पूरे के पूरे संगम लिटरेचर को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, दो भागों में बांट सकते हैं, अक्कम और पूरम, that is love poems and war poems. But at the same point of time, you can also divide it into what you call as narrative texts and didactic texts. Okay. So narrative is where narration is being given. Didactic is where you have other जैसे हमारे स्मृति ट्रेडिशंस होते थे वेद्स के, तो उसी प्रकार से ग्रामर टेक्स्ट्स जो हैं, वोकेबुलरी के टेक्स्ट, वो वैसे सारे डायडेक्टिक टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे, एंथोलॉजीज एक्सेट्रा वहाँ पर मिल जाएंगे। सो 18 मेजर वर्क्स में डिविजन्स हैं एंथोलॉजीज की और आइडियल्स की। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ द 10 पट्टू पट्टूज एंड ऑल, बस आपको यहाँ पर इतना ही समझना है कि 8 एट्टुटोगाई है और 10 पट्टू पट्टू है। ये अक्कम है, अक्कम, अगम नहीं है, अक्कम एंड पूरम। Then you have some other smaller works. ठीक है, 18 major works and other small works. ठीक है, 18 minor works. Major works में जो important work है वो है सिरुपन्ना रूपदाई, which is talking about the decline of 3 kingdoms, that is Chola, Cheras and Pandyas together. ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया था, फॉर एग्जाम्पल the tradition of Varakal, via Vata Kirukal. Vata Kirukal is the tradition of doing suicide or ritual of doing suicide by a defeated king. तो एक defeated king जो है वो आता है और ritual करता है suicide का. That has been mentioned in Sirupanna Rupadai. So, that was just taken from Upinder Singh and given to you as a question. इस साल के prelims में ये दिया गया था. Why it was given, no idea. Will such detailed questions can be given? UPSC is unexpected and it can give you such detailed questions. तो ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जैसे पट्टीना पलाई, जो कराईकाल चोला के बारे में बता रहे हैं, जो अर्लीस्ट चोलास के बारे में बता रहे हैं, उनके विक्ट्रीज के बारे में, सम genealogies और some hagiographies और some एक दो डायनेस्टीज की अपनी पर्सनल स्टोरीज जो है वो आपको देखने को मिल सकती है. सो दैट इज ऑल्सो बीन देयर. थिरुकुरल मैंने आपको बताया, थिरुवल्लार और कुरल भी इसे कहते हैं. इट इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ वेदा. It deals with morals, ethical values, etc., maxim, proverbs, grammatical things, etc. Thirukural and the other text, Tolkappiyam, इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा जाता है. So they should be remembered together. Palmoli is more about grammatical proverbs, जिसको आप कहते हैं संदर्भ, that is there in Tamil text. But the most important is the two epics that you have in the Sangam literature, Silapadikaram and Mani Meghalai. Silapadikaram is the jeweled anklet, as it is called by Ilanguvan Adigal. This is a story of Kovalan and Madhavi. Kovalan is a merchant who falls for Madhavi, who is a courtesan. Kannagi उनकी वाइफ है. ठीक है, तो इनकी ये कहानी है. और इनकी कहानी से या इनके लव अफेयर से जो बेटी पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड एज मनी मेघलाई, वो इसका सेकेंड पार्ट है. सो दिस इज द सेकेंड सीजन ऑफ Silapadikaram. Silapadikaram is the first, you can say, the season, and Mani Meghla is the second season. What is very interesting to know is that Silapadikaram talks about Jainism a lot, whereas Mani Meghla also talks about Buddhism and Buddhist nuns in Puhar region, particularly in the southern Tamil Nadu region. ठीक. कन्नगी कल्ट तमिलनाडु में बहुत ही फेमस है. आज भी कन्नगी को बड़ा
रिवर किया जाता है, एक तरीके से गॉडेस की तरह से रिवर किया जाता है, एंड इट इज टेकन फ्रॉम द epics which is there. Sivagasi Dharmani is not a part of the Sangam literature. Please understand, it's not a part of Sangam. इसको अलग से लिखा गया है, although it's a very important Jain text. ठीक है, तिरुकोस्त वेदार ने लिखा है. So it's just written here because almost at the same time being composed, but it's not a part of it. ठीक है, able to understand everybody? संगम टेक्स्ट इसमें सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं है, बट इसका पॉलिटी से क्या इम्प्लीकेशन है, सोसाइटी से क्या इम्प्लीकेशन है, हमें सोसाइटी के बारे में संगम लिटरेचर से क्या पता चलता है, वो हम अभी आगे आने वाले अभी कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे. विल जस्ट सी नाउ. ओके, इट्स नॉट रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, जस्ट टू डिस्क्राइब इट, but in the sense that how it is related to it and what do we learn about the society, अभी हम करेंगे अभी आते वक्त. ठीक है, anybody any issue? Yes please, can I move ahead? Can I move ahead? Are you all following, right? Are you all following? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना ऑडियो वीडियो में एक्सेट्रा? ठीक है, ओके. गोइंग फॉरवर्ड, फॉरेन अकाउंट के हमारे पास इस समय के जो सोर्सेज हैं, यानी कि अदर देन द संगम एज का सोर्स, कि खुद संगम का जो सोर्स था वो तो था, लेकिन अदर देन दैट सोर्स हमारे पास दूसरे फॉरेन अकाउंट्स के भी सोर्स हैं जो हमें इसी टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं. दैट इज थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक, या सी तक. इसके टाइम पीरियड पे जो हमें दूसरे फॉरेन सोर्सेज बताते हैं वो कौन से हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो कि अनोनिमस राइटर का है. किस राइटर ने लिखा है हमें नहीं पता. ठीक है, एरिथ्रियन सी हम ये मानते हैं कि आज का प्रेजेंट डे रेड सी हो सकता है, या रेड सी के आगे इंडियन ओशन को भी कहा जा सकता है एरिथ्रियन. We don't know for sure, but we know that Periplus of Erythraean Sea was written particularly with respect to tell you about the trade patterns between Indian Ocean and the Greek world or the Roman world. तो रोम या यूरोपियन वर्ल्ड और इंडियन ओशन के ट्रेड क्या क्या हैं वो हमें दर्शाया जाता है फ्रॉम द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टेक्स्ट से हमें पता चलता है दैट देयर वाज अ पर्सन नोन एज हिप्पैलस who this text considers or credits for discovering the monsoon winds in India and using it for their own purpose from 78th century common era, okay, or first century AD आप कह सकते हो. What is so significant about discovering of monsoon winds is that if you ponder about it, Indian Ocean या इंडियन ट्रेड, अगर मैं कहूँ, can I say that it takes a lot of stride during the Kushan time period? So Kushan time period से इंडियन ओशन ट्रेड काफी, और कुशान और सातवाहंस दोनों के टाइम पीरियड से इंडियन ओशन ट्रेड काफी ज्यादा प्रॉस्पर हो रहा था. कैन आई से दैट इफ यू रिमेंबर द कुशान्स एंड द सातवाहंस लेक्चर, क्या मैं कह सकता हूँ कि that was becoming more prosperous? Yes please. Then why is that so? If you think that was becoming prosperous, what compelled Europeans to come to Indian shores? जैसे कि मैंने सातवाहन जब हम कर रहे थे या कुशांस भी हम कर रहे थे, हमने देखा कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं इंडिया की तरफ आ रहे हैं. सातवाहन्स के पास रोमन गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा मात्रा में. तो सिल्क ट्रेड रूट जो है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सर सिल्क ट्रेड रूट की वजह से, तो सिल्क ट्रेड रूट की वजह से कुशान्स को फायदा हो रहा है. बट व्हाट अबाउट सातवाहन्स? व्हाई आर सातवाहन्स वेरी प्रॉस्परस? सातवाहन्स को कैसे मदद मिल रही है? यस प्लीज.
एनी थॉट, एनीबडी? ऐसा क्या था कि हाँ, पोर्ट्स भी हैं, बिल्कुल सही बात है, पोर्ट्स हैं, डिस्कवरी ऑफ ट्रेड रूट्स हैं, और ट्रेड रूट्स आपके नॉर्दर्न एरियाज़ को कैपिटलाइज़ कर रहे हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ स्टेबल हैं, तो वहाँ से आप ट्रेड रूट्स डिस्कवर कर सकते हैं। ब्लैक पेपर है, कमोडिटीज़ हैं, लेकिन ईज़ ऑफ ट्रेड कैसे हो रहा है? ऐसा अचानक क्यों हो रहा है कि रोमन गोल्ड कॉइन्स हमारे इंडिया के तटों पर मिल रहे हैं बार-बार? ग्रेट होर्ड्स मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? One of the reasons is the coming together of or the discovery of monsoon winds कि monsoon winds की discovery हो रही है। ऐसा नहीं कि monsoon winds इनके साथ में आ रहा है और इससे पहले monsoon winds नहीं हुआ करता था। I hope all of you appreciate this point और आप लोगों ने geography किया होगा कि बेसिकली होता ये है कि monsoon trade winds इंडिया में एक मिनट, I'll just if let's suppose this is Indian peninsular region. So I hope you all know that the monsoon trade winds ऐसे आ रहे हैं. Yes, please. Southwestern monsoon trade winds. And yes, मान लीजिए इक्वेटर नीचे है, इक्वेटर को क्रॉस करते ही वो राइट लेते हैं, राइट? दे फॉलो व्हाट यू कॉल एज द कोरियोलिस इफेक्ट एंड दे टर्न टूवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. And you have the coming up of moisture laden winds along with huge rain bearing clouds which wash the Indian shores, right? है ना? Now don't you think that ये फेवरेबल होगा एक ऐसे ट्रेडर के लिए जो भारत में इस समय आना चाहता है? कहने से कि सबसे अच्छा टाइम पीरियड एक सी फेरर के लिए, एक एक सी में उतरने वाले मर्चेंट के लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड होगा जून जुलाई का महीना, जब इंडिया की तरफ आने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपकी बोट्स जो हैं अफ्रीका से चलेंगी तो अपने आप विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रेड विंड्स इंडिया पहुंच सकती है। यस प्लीज, यू जस्ट हैव टू बी एट द राइट प्लेस इन द राइट डायरेक्शन इन द राइट टाइम। यस प्लीज। ओके, सो that is what you call as the discovery of monsoon winds. तो पेरिप्लेस ऑफ एरिथ्रियन सीज डिस्कवरी को बताता है, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी बिकॉज इट ऑल्सो टेल्स यू व्हेन टू एग्जिट इंडिया। तो जस्ट यूज योर जोग्राफिकल नॉलेज एंड लेट मी नो कि एग्जिट करने के लिए, इंडिया को छोड़ने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होगा फिर किसी ट्रेडर के लिए, कि इंडिया से अगर निकलना है और सी में ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप कौन से टाइम पीरियड पे निकलेंगे इंडिया से? विंटर सीजन, व्हाई? बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, करेक्ट, ठीक है। तो इंडिया में जब आप, बिल्कुल सही है, जब आप अक्टूबर के बाद, पर्टिकुलरली अक्टूबर का सेशन जब शुरू होता है, सो इंडिया इज विटनेसिंग व्हाट यू कॉल्ड एज द रिट्रीटिंग सेट ऑफ मानसून, जिसको आप नॉर्थ ईस्टर्न मानसून भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स, जो आपके तमिलनाडु वाले एरिया को रेन देता है, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को रेन देता है, या श्रीलंका को रेन देता है, ठीक है। सो दैट पार्ट इज वेयर यू विल लीव इंडिया। सो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड हुआ करता था जून से लेके अक्टूबर तक का टाइम पीरियड, so from June the merchants used to come to India, flock India, and October they used to exit India. Okay, this was discovery, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी के बाद इंडिया में ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ा, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि ये डिस्कवरी फर्स्ट सेंचुरी एडी में हो रही थी और उसके बाद ट्रेड बढ़ रहा था। सातवाहन्स वर आल्सो at peak at this time period in the South India, और कुशान्स also were at peak at this time period in the North India, ठीक है। तो ये एक चीज थी। दूसरा था प्लीनी, जिन्होंने लिखा नेचुरल हिस्टोरिका। Now Pliny writes Natural Historica. Pliny the Elder, Pliny the Senior writes Natural Historica. This is the book, and he says about many other things. He particularly says about what Indians were trading. Indians trade किस में कर रहे थे, ठीक है? They were trading in what?
So Indians were trading in spices, Indians were trading in ivory, Indians were trading in silk, Indians were trading in cotton, okay, and other finished goods or finished jewelry products, etc. प्लिनी ये बताते हैं कि यूरोपियंस के पेपर और सिल्क के प्यार ने, लाइक लिटरली द लव ऑफ पेपर एंड सिल्क, वहां से गोल्ड की नदियां, यानी कि यूरोप से न गोल्ड की नदियां जो है वो रोमन एम्पायर से बह के इंडिया में जा रही थी. So India was having what you call as aureus and denarius, which was gold and silver coin of Roman origin in India. ठीक है. और ये कंप्लेन प्लीनी कर रहे हैं अपने नेचुरल हिस्टोरिका में. ऑल दैट वी गेट टू नो. इनफैक्ट वो ये भी बताते थे कि अ गुड क्वालिटी ऑफ पेपर इज ऑल्सो किंग्स रैंसम. तो वो ये भी बता रहे थे कि किंग्स रैंसम के लिए भी फिट था अ गुड क्वालिटी ऑफ पेपर. सो पेपर वाज सेलिंग for the place of gold. It was as वैल्यूबल एज गोल्ड. एंड इसीलिए इंडिया में भी पेपर को बहुत जगहों पर यवण प्रिय बताया गया है. ठीक है. यवण प्रिय मीन्स loved by Yavanas. Yavanas और Malechas were the word used for Europeans. हम यूरोपियंस के लिए ये वर्ड यूज करते थे. संस्कृत वर्ड से ये, which we were using for Europeans. Okay. Then we had Ptolemy's geography. Again, Ptolemy भी जो है इंडो रोमन ट्रेड के बारे में बताया कर रहे थे, etc. This is the same thing that he was talking about. Okay. Other than Mahavamsha and Deepavamsha, which were chronicles from Sri Lanka at that point of time. ठीक. Now, archaeological sources, materials at that point of time is more मेगालिथ पीरियड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल सोर्स हमारे पास दूसरे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज लिटरेचर सोर्स. तो संगम के लिटरेचर सोर्स तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ही. मेगालिथ के सोर्स हमें कुछ ज़्यादा बताते नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट बरियल स्टोन्स. रिमेंबर दैट मेगालिथ का मतलब होता है मेगा. मेगा मतलब बड़ा, बिग, एंड स्टोन, स्लिथ का मतलब होता है स्टोन. सो बिग स्टोन कल्चर. सो होता ये था दैट देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज हीरो burials, which is called beg your pardon. Hero burial tradition was there in uh, you know साउथ इंडिया, जहाँ पर अगर कोई बड़ा वॉरियर या कोई बड़ा किंग मर रहा है या कोई बड़ा ट्राइबल चीफ जो है मर रहा है, तो उसके नाम पर एक बड़ा स्टोन जो है करके उनके आसपास, उनके बॉडी के आसपास वो स्टोन गाड़ दिया करते थे, along with some inscriptions out there. That's it. Nothing to be written, but just some chiseling out there. So ये मेगालिथ बरियल्स हमारे लिए बस ये दर्शा रहे थे कि देयर वाज something which was going ahead than the Stone Age culture. Many students think that is Stone Age culture. No, it is not Stone Age. Megalith people knew how to make iron products. So they were actually making iron products earlier than नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में तो आयरन प्रोडक्ट्स 600 में आता है, 600 बीसी में, बट यहाँ पे आयरन प्रोडक्ट्स आपको 1000 में ही मिल जाएगा. ठीक है. सो दे वर आयरन एज कल्चर, बट दे आर मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मेगालिथ बरियल्स. ठीक है. नॉट वेरी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट, बट यस, बस ऐसे ही. तो ये कुछ मेगालिथ बरियल्स जो हमें मिलते हैं, डॉल्मेन, कैरन, सिस्ट एक्सेट्रा, जहाँ पर कभी कभार ह्यूमन पाइल ऑफ स्टोन्स आपको दिखेंगे कोनिकल फॉर्म में, या चेम्बर टूम दिखेगा एक्सेट्रा. Okay, so these are some of the ways through which they try to bury their dead or honor their dead. So that is being there. But what is more important for us is the Sangam Age towns. तो हमें थोड़े बहुत brick structures मिलते हैं with Tamil Brahmi inscriptions. Okay, particularly we get Roman pottery. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेरा सिग्लाटा.
रोमन पॉटरी हमें मिलता है, एम्फोरा पॉटरीज हमें मिलते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमें ये बताता है कि रोम से जो आ रहा था वो था वाइन। ठीक है, हम वाइन को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे रोम से, other than gold and silver, which was coming from there. So Terra Siglata and Amphora were one such, क्योंकि वाइन तो मिलेगा नहीं ना हमें, तो वाइन जिस जार्स में आ रहे थे वो जार्स के नाम है टेरा सिग्लेटा, एम्फोरा, एक्सेट्रा. These are very nicely made jars which are still being found in intact way from this time period. यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिल ब्राह्मी inscriptions on the temple structures that we get. So हमें थोड़े बहुत तमिल ब्राह्मी inscriptions मिलते हैं from the चेरा rulers, from the पांड्यन rulers. कभी कभार जैन रॉक शेल्टर्स केव्स में हमें मिलते हैं. ठीक है, अभी हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर किया, सो आई होप आई टोल्ड यू that there are some of the caves in Tamil Nadu, for example, Sitan Vasal caves, which depict Jain culture in South India particularly. Remember that. Are you following, guys? Anybody? Sir, ransom का मतलब होता है भाई किंग को भी आप छुड़वा सकते हो 1 किलो पेपर देके. Fitting a king's ransom, fitting that. Okay, so that has been there. Yes, are you following, guys? Anybody, any questions? जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो I cannot see your comments. Yes. Anybody, any questions? Are you following? Yes, please. No questions? Can I move ahead? Yes. Okay. Okay. सर एटू टोगाई एंड पट्टू पट्टू दे आर 18 एंथोलॉजीज, उसमें से 8 एटू टोगाई हैं, 10 पट्टू पट्टू है. दीज आर लव सॉन्ग्स एज वेल एज वॉर. ठीक है, दीज आर जस्ट इफ यू कैन से शॉर्ट सॉन्ग्स, पोएम्स, शॉर्ट पोएम्स. ठीक है. ओके, मूविंग अहेड. कॉइन्स हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं. कॉइन्स वी गेट अ लॉट. We get two types of coins. One is the coin of the local dynasty, that is Cholas, Cheras और पांड्यास का. और ये कॉइन्स ही हमें उनके सिंबल्स के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ चेरा कॉइन जो बो एंड एरो दिखाता है. तो चेराज हैड बो एंड एरो. जो आज शिवसेना का सिंबल है ना, बो एंड एरो, तो वो वाला सिंबल हुआ करता था चेरास का. ठीक है. दिस इज द टाइगर कॉइन विच इज ऑफ चोलास. ठीक है, तो चोलास का सिंबल हुआ करता था टाइगर. ओके. एंड पांड्याज हैड पर्टिकुलरली मीन सिंबल और द फिश सिंबल. ठीक है, यूपीएससी had asked this once symbols के बारे में. तो fish types of ऐसे coin ऐसे आपको मिलते थे, mean kind of symbols out there. ठीक है. So these types of coins, this is one type of coin. The other type of coins that we get is hoard coins, जो Roman coins हुआ करते थे, जो मैंने आपको बताया, Aureus and Denarius. ठीक है, तो ये सारे coins हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से मिलते हैं. इनफैक्ट दीज, अगर इस पे एक न्यूमिस्मैटिक्स पे एक क्वेश्चन आ जाए, सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि न्यूमिस्मैटिक्स एक अच्छा तरीका है इस टाइम पीरियड के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का. ओके, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे थ्रू इट. नाउ कमिंग टू द डायनेस्टीज विच वर देयर, हमें अशोकन रॉक एडिक्ट में ही पता चलता है, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज में भी पता चलता है.
कि ये बताया जा रहा है हमें कि तिरुपति हिल से साउथ कन्याकुमारी तक, ठीक है, 3 डायनेस्टीज रहते हैं तमिड़कम के क्षेत्र में। एक है चोलास, दूसरे हैं पांड्याज। चोलास इन द अपर तमिलनाडु रीजन, पांड्याज इन द लोअर तमिलनाडु रीजन, एंड देन यू हैड द चेरास, ठीक है, जो कि आज के प्रेजेंट डे केरला में। And they share the areas, they share the boundaries, they have enmity with each other because, as you can see, they have to share the river plains as well as they have to look and fight with each other's territory. तो इनकी हिस्ट्री जो है एक दूसरे से टकराव की हिस्ट्री है, एक दूसरे से फाइट की हिस्ट्री है, और कोई हिस्ट्री नहीं है. But just that they were the 3 earliest kingdoms. So Pandyas सदर्न तमिलनाडु के मदुरई को कैपिटल बनाकर रहा करते थे. इज द रॉयल सिंबल इज कार्प और मीन और फिश. जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे वो थे नेदुंजियल. ही अगेन एज यू कैन सी ही डिफीटेड चोलास एंड चेरास. हर राजा एक दूसरे को डिफीट ही कर रहा होगा कोई ना कोई, ठीक है. सो वो स्टोरीज है दैट बाप का बेटा बदला ले रहा है, बदला बेटा ले रहा है एंड ऑल. तो those kinds of stories you will keep on fighting. So battle of Talilanganam is one important. नेंदुजियल को संगमेज में भी स्टोरी बताई गई है, एक्सेट्रा. चेराज इन द प्रेजेंट डे कोचिन इन द केरला रीजन. बो एंड एरो इनका सिंबल है. सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट इनके हुआ करते थे मुजरीज. मुजरीज पूछा गया था इस बार कि यूपीएससी के क्वेश्चन में, सीएससी में, मतलब प्रीलिम्स में ही पूछा गया था. आपको बस ये पूछा गया था मुजरीज क्या है, कोरकाई क्या है, ठीक है, अरिका मेडू, ठीक है, व्हाट आर ऑल दिस, ठीक है. सो दीज आर नथिंग बट पोर्ट्स. यूपीएससी ने क्वेश्चन लिया और सीधा आपको पूछ दिया, सिंपल. ओके. इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर होते थे सेंगुत्तवन, हु वाज आल्सो नोन एज रेड चेरा, द गुड चेरा और द रेड चेरा, एक्सेट्रा, जिन्होंने वेनी और थलेलंगनम का बैटल भी लड़ा. And finally, you have Cholas. Don't confuse this Cholas with the later imperial Cholas. Later imperial Cholas अलग हैं, ठीक है. ये earlier Cholas हैं. इनके kings के नाम है कराईकल चोला, एलारा चोला, ठीक है, ऐसे नाम है इनके, ठीक है. Later imperial Cholas जो हैं वो 8th century के बाद आएंगे, and which we'll do shortly, I think tomorrow. So these are the later Cholas. Sorry, these are the earlier Cholas. जो आपको अगर टाइमलाइन में सिंपली बताऊं तो ये चोलाज, यहाँ पर पांड्याज और यहाँ पर चेराज. बाद में क्या होगा, 3rd सेंचुरी एडी के बाद में या सीई के बाद में ये चोलाज को हटाकर पांड्याज भी रहेंगे ही, लेकिन पांड्याज और नीचे चले जाएंगे. दे विल लूज देयर इकोनॉमिक और देयर लूज देयर पॉलिटिकल माइंड, और ये चोलाज को हटाकर यहाँ पर आ जाएंगे पल्लव्स, और आप पल्लवा डायनेस्टी पढ़ते हैं, ठीक है. ये चेरास भी सबड्यू हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे चालुक्यंस, ठीक है. तो फिर कहानी चलेगी चालुक्यंस और पल्लवास के बीच की, इन दोनों के फाइट की, और चोलास इन्हीं के नीचे काम करने लगते हैं, ठीक है. और जब पल्लवास खत्म होते हैं, when Pallavas almost lose their eminence in around 7th century AD, then you have the coming up of Cholas again. वापस चोलास जो हैं हैवी होते हैं, और 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक फिर चोलास आ जाते हैं. अब ये वही चोलास हैं, इसका पूरा पूरा एविडेंस नहीं है. बट द चोलास, दे टेक द चोल्स टेक देयर नेम फ्रॉम द अर्लियर डायनेस्टीज. जो बाद में जो चोलास आते हैं, हालांकि वो अर्लियर चोला से अपने आप को ट्रेस नहीं करते हैं, बट नॉट मेनी हिस्टोरियंस आर वेरी मच श्योर अबाउट दिस, ठीक है. तो हम लेटर और अर्ली चोलास दोनों को लिंक उतना नहीं करते हैं. दैट इज द वे अबाउट इट. But as you can understand that their stars were rising and falling and they were becoming feudatories, और feudatories ही बाद में king बन रहे थे. The feudatories were only becoming king again and again. Clear? समझ में आ रहा है? So Karaikal Chola, Elara Chola, these were some of the Cholas. They captured Sri Lanka, or they had constructed of Puhar city, Kaveri पे irrigation facilities provide करने का भी काम किया करते थे, etc. So this is in the upper Tamil Nadu region, ठीक है. They were not credited with building any temples. अभी कोई temples नहीं बना रहा है, अभी कोई कुछ नहीं बना रहा है. सबसे पहला temples जो है वो पल्लवास बनाएंगे साउथ इंडिया में. So that will go on.
Clear, everybody? Yes, please. सर ये सब पल्लवस चालुक्यंस कब आते हैं, वही मैं बता रहा था। पल्लव्स चालुक्यंस जो है वो आपको 5th सेंचुरी एडी से आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 5th सेंचुरी से 5th 6th 7th तक वो रहेंगे, एंड देन उसके बाद यू हैव द कमिंग अप ऑफ सर चोलास वर हुज feudatories. The earlier cholas were nobody's feudatories. They were perhaps the local magnates or the local landlords, and later on they became the feudatories of Pallavas. फिर बाद में वो पल्लव्स के feudatories बन जाते हैं because they lose their political eminence. So that is the story of 5th 5th century AD. ये हम कहाँ तक कर रहे हैं, 3rd century AD तक। सो 3rd 3rd century AD के बाद जब 5th 5th century AD आता है, जब पर्टिकुलरली आप समझिए कि ऊपर गुप्ता पीरियड खत्म हो रहा होगा तो पल्लवाज आ रहे हैं। ठीक है, तब पल्लवाज आ रहे हैं और उनके फ्यूडेटरीज चोला बनेंगे। सो आई जस्ट टोल्ड यू आगे की स्टोरी थोड़ी बहुत इन ऑर्डर टू कनेक्ट यू फ्रॉम देयर। ठीक है ना? आर यू फॉलोइंग? यस प्लीज। समझ में आ रहा है ना ये चोला पल्लवा वाला कहानी है? यस। ठीक है। एनीबडी एनी क्वेश्चन? टाइमलाइन समझ में आ रहा है? Are you all okay with the timeline? Sir, were they fighting over the river? Is it today's Kaveri? हाँ, आज ही का वो ही कावेरी उस समय भी है, इतना चेंज नहीं हुआ है। साउथ इंडियन रिवर्स डोंट चेंज दैट मच, दे आर denuded रिवर्स, है ना? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा दैट साउथ इंडियन पर्टिकुलरली द डेक्कन पेनिनसुला का जो सेक्शन है, द डेक्कन ड्रेनेज दैट यू फाइंड, दैट इज denuded ड्रेनेज, तो वो शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्टिंग ड्रेनेज पैटर्न जो है वो पूरा का पूरा गंगा ब्रह्मपुत्रा इंडस का है, वो शिफ्ट होता है, लेकिन साउथ का ड्रेनेज शिफ्ट नहीं होने वाला। ठीक है, द रॉक्स दे फ्लो बिटवीन रॉक्स, पर्टिकुलरली denuded रॉक्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो सुपर इम्पोज रॉक्स आउट देयर, तो वो शिफ्ट नहीं होंगे। So fight was indeed one. The river sharing was a major issue, but along with the river sharing, if you look at the आप ये मैप को देख लीजिए। इस मैप को ही देख के आपको पता चलेगा दैट यू नो मोस्टली इट इज अबाउट द प्रेजेंस और द कैप्चरिंग ऑफ दोआब रीजन। दो रिवर्स के बीच में जो रीजन होता है, ठीक है, कि कावेरी और वेगई रिवर के बीच में जो रीजन है, या मान लीजिए पंपा और भरतपुजा के बीच में कोई रीजन है। अब ये जो रीजन होगा उन दोनों के बीच में, उसको दोआब बोलते हैं हिंदी में, या अवधी में, या आप हिंदुस्तानी में उसे दोआब बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इन तमिल, बट दिस इज द इंटरमीडिएट रीजन जहां पर सबसे ज्यादा फार्मर्स और सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड हुआ करता है। द फाइट इज फॉर द फार्मर्स हु विल गिव यू टैक्सेस, एंड इफ fertility is there, then only farmers will come, and then only you will receive any kind or any amount of taxations. So the idea is to collect as many doabs or as many fertile areas as possible. और फर्टाइल एरिया को कलेक्ट करना और फर्टाइल एरिया को बनाना दोनों भी चीज है। तो आप ये भी देखेंगे कि नॉर्थ इंडियन राजा से ज्यादा साउथ इंडियन राजाज इरिगेशन के काम किया करते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चोलाज इरिगेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, पांड्याज इरिगेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, एंड यू नो दे आर आल्सो कंस्ट्रक्टिंग डैम्स in ancient in time period. So this is a very fascinating find. You can ask yourself that why are North Indian kings, just staying, and South Indian kings are making all those provisions. And because of today also, you can just see that आज की politics भी यही है कि जैसे ही समर टाइम आएगा, गर्मी का सीजन आएगा, आप देखेंगे कि सब लोग जो है वापस वो कावेरी वाटर डिस्प्यूट, या जो है मेत्तूर डैम या नागार्जुना सागर डैम, ठीक है, तेलंगाना आंध्रा के बीच में अब इश्यूज ज़्यादा हैं बिकॉज आंध्रा एंड तेलंगाना हैव बिकम न्यू स्टेट्स एंड दे हैव टू शेयर वाटर्स अगेन. So all these reasons were there at that point of time. All these reasons are today at this point of time also. Except for the fact that we now operate in a federal polity. तो हमें जो है
हम अपने डिविजन्स को लड़ाई तक नहीं ले जा रहे हैं, हम अपने डिविजन्स को लड़ाई पे ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होती है, हाई कोर्ट में लड़ाई होती है। बेसिकली सारी की सारी लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, ठीक है। बट बेसिकली दैट इज द इशू। क्लियर? आगे बढ़े। लुक एट द पॉलिटी देन। यस प्लीज। यस, कैन वी मूव अहेड गाइस? Okay. So, look at the polity as such. Uh, हम ये कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि जो थे, उन्होंने नॉर्थ इंडिया के ट्रेडिशन साउथ इंडिया पे, ही वॉज द फर्स्ट वन टू क्रॉस नर्मदा फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। और ये बताते हैं कि अगस्त्य ऋषि जो हैं वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पे ट्रेडिशंस लेके गए हैं, नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशंस, नॉर्थ इंडियन स्टोरीज अबाउट महाभारत, रामायण, वेदास एक्सेट्रा, वो लेके गए हैं साउथ इंडिया। इनफैक्ट संगम एज में भी आप अगस्त्यार ऋषि को मेंशन करते हैं एज द हेड ऑफ द फर्स्ट संगम, राइट? So that is why the kings started doing things in South India as the kings of North India used to do. So, for example, they started assuming titles Maharaja, Bhattaraka, Dharma Maharaj, Adhiraja, etc. हम लोगों ने गुप्ता किया हुआ है ना? Have we done Guptas? मैंने आपको बताया था गुप्तास की ग्रैंडिलोक्वेंट टाइटल्स, sir, but weren't North Indian kings as much dependent on farmers as South Indian kings? अच्छा, हम लोग ने गुप्ताज नहीं किया हुआ है। जब हम गुप्ताज करेंगे, then you will realize that the Guptas were also using such titles: महाराजा धीराज, परम भट्टारका, धर्म महाराजा धीराजका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कविराज, ठीक है। तो ऐसे टाइटल्स गुप्ता यूज किया करते थे, और उसी का कॉपी भी, या आप कह सकते हैं कि उसी के तर्ज पर ये भी यूज कर रहे हैं। Okay, I'll come, Drishti, I'll come to your question. So, you know, why such titles are being used? मैंने शायद किसी और लेक्चर में किया है गुप्तास, so I'm getting confused with you guys. So why such titles are being used? अगर ऐसे टाइटल्स आपको किसी डायनेस्टी में दिखते हैं, तो सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ऐसे टाइटल्स क्यों यूज किए जा रहे हैं? Why? Anybody? Any thought? To show their valor? No. ब्रेवरी भी है, ठीक है, हाँ, आप एक कह सकते हो। बट रिमेंबर, यू आर महाराजा ओनली बिकॉज somebody इज ऑल्सो राजा। समझ रहे हैं इस बात को? अशोक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? अशोक अपने नाम के आगे लगाते थे मगधे राजे अशोक, मतलब इंपीरियल टाइटल। वैसे तो हमेशा वो अपना प्यारा सा टाइटल यूज करते थे, देव नाम पिय पियदसी, है ना? तो वो तो अपना टाइटल यूज कर रहे हैं, लेकिन इंपीरियल टाइटल में वो लगाते थे मगधे राजे अशोक, मैं मगध का राजा हूं, बस। सिंपल सी चीज है, सिंपलिसिटी में जीने वाला आदमी, जिसके नीचे और कोई राजा नहीं है, ये अकेला राजा है। लेकिन आप महाराजा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके नीचे सैकड़ों राजा हैं, आपके नीचे सैकड़ों भट्टारका हैं, यानी कि आपके एरिया में फ्यूडलिज्म छाया हुआ है, आप फ्यूडल लॉर्ड्स के बल पर अपना राज्य चला रहे हैं। तो क्योंकि आपके एरिया में 10 राजा हैं, इसीलिए आप राजा हैं, महाराजा हैं। होता है ना, if there are 5 commissioners, then you call somebody as chief commissioner, because there are assistant commissioners of police, district commissioners or deputy commissioners, and their assistant or associate, so on and so forth. And then you have chief commissioner because you want to say that you are chief commissioner. It's like saying that somebody is finance minister, somebody is home minister, somebody is health minister, but then somebody is prime minister. That prime minister means that you are the head of the council of minister. That's it. You are first among equal. Prime minister का rank कुछ अलग नहीं है. Prime minister का rank is first among equals, but he has to be prime. Okay.
यहाँ पर जो महाराजा का कंसेप्ट है, यहाँ पर जो भट्टारका का कंसेप्ट है, धर्मा महाराजा धीराज, आप समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को? इसका मतलब आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं। यू हैव अ फ्यूडल सिस्टम विच इज ऑपरेटिंग। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है कि ऐसे टाइटल सब क्यों यूज कर रहे हैं? जब हम गुप्ताज करेंगे और गुप्ताज में वापस हम देखेंगे दैट देयर हैज बीन ग्रैंडिलोक्वेंट टाइटल्स, ऐसे ही टाइटल्स वापस आएंगे, तो मैं वापस आपसे पूछूंगा एंड देन यू हैव टू गिव मी दिस रिप्लाई दैट यस देयर वाज फ्यूडलिज्म आउट देयर। तो जहां पर भी आपको फ्यूडलिज्म दिखेगा, ये ग्रैंडिलोक्वेंट टाइटल्स उसका सबसे बड़ा सूचक है, द बिगेस्ट symbol of feudal society. Are you getting it? Or, for example, in companies, you get chief operating officer, chief economic officer, chief technical officer. So there are so many chiefs, right? But then you have somebody who is the, you know, chief of chiefs. So when you have such chiefs of chiefs, you present it with some greater grand title, right? That tells you what? That tells you that this organization is a hierarchical organization. Hierarchy. Are you getting it? समझ में आ रहा है? The hierarchy of it. Yes. Okay. Sir, portfolio system also started by the Guptas. No, portfolios was there obviously with the Mauryas themselves. We have seen the administration और वहाँ पर कितने अध्यक्षास और तीर्थास और अमात्यास महामात्यास रहा करते थे. So the portfolios were there at that point of time. दृष्टि, आपका एक क्वेश्चन था दैट वर द नॉर्थ इंडियन फार्मर किंग्स नॉट डिपेंडेड ऑन द फार्मर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया? The North Indian kings were definitely dependent on the tax structures, but they were having access to other resources also. Taxation was not the main form of wealth generated. War was also the form of wealth generated, along with the capturing or along with trade or yes others, but not just sharing or taking taxes. ठीक है, ठीक है. So here you have, with such titles, the coming up of, as I would like to say, feudal or hierarchized society. तो hierarchized society थी, feudal society है, ये हमें देखने को मिल रहा है. We are seeing this happening. Okay. किंग परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ. जो जो नॉर्थ इंडियन किंग्स कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं. भाई क्यों नहीं करेंगे? ये सारे वैदिक रिचुअल्स हैं इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइज योरसेल्फ. तो ये लेजिटिमाइजेशन का प्रोसेस है दैट यू आर लेजिटिमाइजिंग योरसेल्फ. ओके. देयर वर नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ वेरियस रैंक्स. हम देखेंगे कि किंग्स के पास में दूसरे ग्रुप्स के लोग कौन हुआ करते थे. विल सी. ओके. ओके. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है. हाँ, हियर इज. These are some of the groups which is there. So for example, you had the most important groups. Actually, there were two types of सोसाइटीज दैट फॉर्म्ड. अगर मान लीजिए किंग है तो किंग के दोनों तरफ दो अलग अलग टाइप के लोग बैठते थे. ठीक है. वन वॉज इदंगई, द अदर वॉज वेलंगई. इदंगई का मतलब होता था आर्टिजन ग्रुप्स और द मर्चेंट ग्रुप. वेलंगई का मतलब होता था फार्मर्स ग्रुप. तो ये फार्मर्स ग्रुप से आता था वेलालास. कैन यू सी दिस? वेलालास का मतलब पेजेंट्स. ठीक है. सो वेलालास वर पार्ट ऑफ द इदंगई. ये सोसाइटी को भी शेप कर रहा था. साउथ इंडियन सोसाइटी वॉज नॉट एग्जैक्टली द सोसाइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का डिफ्रेंसिएशन है. ये एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं था. ये थोड़ा सा ट्राइबल सोसाइटी था, पर्टिकुलरली संगम एज में. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो लेटर चोलाज में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. बट अर्लियर ग्रुप ऑफ पीपल वर डिवाइडेड इनटू इदंगई एंड वेलंगई ग्रुप्स. और उसके बाद में सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस जो है वो हाई और लो के बीच में ही रह गया, ज्यादा डिवाइड नहीं हुआ. सो वेलालास जो है वो वेदंगई से आते थे. ठीक है. एंड दे वर द पेजेंट्स ऑफ दैट. वैश्यार्स और वैश्यास वर ट्रेडर्स, अरासार्स वर रूलर्स एंड अनंदार्स वर प्रीस्ट्स. सो यू हैड प्रीस्ट्स एंड रूलर्स के बीच में काफी सामंजस्य हुआ करता था, विच इज ऑलरेडी बीइंग देयर. एंड ट्रेडर्स वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
इकोनॉमी के बारे में मैंने पहले ही हम लोगों ने बात की है। तो आप जानते ही हैं कि हमारा ट्रेड चलता था रोम से, इजिप्ट से, चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया से, श्रीलंका से। सो वी हैड गुड ट्रेडिंग्स एक्सेट्रा। कराईकल चोला had good irrigation facilities been given. Pliny tells us about exports from South India, pepper, यहाँ पे आ गया यवन प्रिय, और टेक्सटाइल्स, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स में सिल्क ही है, ठीक है, कांजीवरम सिल्क एक्सेट्रा, एंड स्टोन्स, ठीक है। पुहार वॉज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पर्ल्स, पुहार को सिटी ऑफ पर्ल्स बोला जाता था, ठीक है, कि it was having a lot of production. Our important ports. This was a question in prelims, as I told you this year itself. Muziri is Puhar. Muziri is in Kerala coast. ठीक है, Puhar in Tamil Nadu coast. Korkai again in Kerala coast. Tondi, Komari, etc. This is Kanyakumari, etc. Which is middle, and Arikamedu or Poduke, which is again in present day Pondicherry. ठीक है, तो that is. These were some of the important ports out there. कुछ एरियाज के नाम भी इन्होंने दिए हुए हैं। साउथ इंडिया में आज भी इन एरियाज को उसी तरीके से कहा जाता है। मारुतम रिवराइन जोन, कुरिंची इज माउंटेनियस जोन, मुलाई इज पेस्टोरल जोन, नेतन इज कोस्टल जोन, ठीक है, पलई इज एरिड जोन, ठीक है। नॉट टू बी एग्जैक्टली रिमेम्बर्ड, कुछ आता नहीं है, बट ठीक है, आप देख सकते हैं। किसी किसी जगह पर आप ये डिवीजन भी देखेंगे, द डिवीजन ऑफ लैंड एज फाउंड इन तोलकापियम। सो फॉर एग्जांपल विलालास जो हैं वो फर्टाइल लैंड में रहेंगे बिकॉज दे आर पेजेंट्स, ठीक है। परोवदार्स आर फिशरमैन, तो दे विल रिमेन इन कोस्टल रीजन। मारवाराज आर रिमेनिंग इन बैरल लैंड बिकॉज दे आर वॉरियर्स, और इन डेजर्ट लैंड, so मारवाराज डेजर्ट में रहा करते थे। कुरुवराज आर इन हिली रीजन, एक्सेट्रा। Uh, so that was being followed. Society was largely trying to be Sanskritized. ठीक है, संस्कृताइजेशन एक हम प्रोसेस पढ़ते हैं, दिस इज अ प्रोसेस इन साउथ इंडिया, जहां पर नॉर्थ इंडिया के ट्रेडिशंस कॉपी किए जाते हैं या नॉर्थ इंडिया के ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड गॉड्स लाइक मुरुगन, शिवा, कृष्णा विच इज मेयॉन, बलराम, मुरुगन इज लार्जली सिनोनिमस विद विष्णु। सो ये सारे गॉड्स जो नॉर्थ इंडियन गॉड्स हैं उनका आना शुरू हो रहा था साउथ इंडिया में, बट बुद्धिज्म और जैनिज्म पहले से एग्जिस्ट करते थे। ओके, दे वर एग्जिस्टिंग फ्रॉम बिफोर इटसेल्फ, एज वी हैव सीन इन द संगम टेक्स्ट। हमने संगम टेक्स्ट में देखा मणि मेखलाई, और सीलापदिकरम और मणि मेखलाई दोनों में आप बुद्धिज्म और जैनिज्म को देखेंगे, ठीक है। बट उसके अलावा जब पर्टिकुलरली पल्लव डायनेस्टी आती है, तो पल्लव डायनेस्टी के बाद टोटली संस्कृताइज्ड हो जाता है, मतलब टोटली संस्कृताइज्ड हो जाता है। यू हैव शैव कल्ट देयर, कपालिका जो सेक्ट था शैविज्म का, वो सबसे ज्यादा बड़ा बन जाता है। ओके, so that is coming up and you have huge and आप चोलास को जानते ही हैं, later cholas they make huge temples of Shiva. Pallavas will make huge temples dedicated to Mahabharata time period also, etc. ठीक है। You had another smaller worships like hero stone worship जो megalith culture से आ रहा था। So megalith culture से ये hero stone worship चल रहा था, which you can say it was a tribal culture. Sati stone culture, animism, they were all being practiced, etc. There was some form of sati that we have seen. So this is basically your Sangam polity or economy here that we have. Sir, Yavan Priya means pepper. Sir, Southern kings were dependent on trade, taxation, selling their products of different neighboring countries. No, they were dependent mostly on farming and trade, not selling their products. They were not selling their products, the merchants were selling their products, और वो merchants से taxes लेते थे. They were not directly dependent on selling the products. ठीक है, clear? Yes, please.
So from Sangam, although we are not getting a lot of questions, but questions to I was, sir, why in South India there was a war between Shaivism and Vaishnavism? See, two things happened. एज आई टोल्ड यू, जो अभी हम लोग ये संस्कृताइजेशन का प्रोसेस कर रहे थे, वीवर एक ऐसे है, आई विल शेयर विथ यू ऑफ संस्कृताइजेशन, एस एन श्रीनिवास का ऐसे है, श्रीनिवास, इट्स अ वेरी गुड ऐसे ऑफ अराउंड 40 पेजेस. अगर किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं अबाउट संस्कृताइजेशन, एंड इट विल आंसर योर क्वेश्चन दैट व्हाई शैविज्म एंड व्हाई. It says that this particular Srinivasa's essay says that साउथ इंडिया में जब नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशंस आ रहे थे, they were accepted in different genres. So for example, Tamil Nadu regions or the dynasties of Pallava and Cholas, they accepted largely Shaivism. Okay, because of what reason? Because of hero worship, and because of their some congruence with स्टोन वर्शिप. तो थोड़ा सा स्टोन वर्शिप और हीरो वर्शिप का जो कॉन्ग्रुएंस था, जो फैलस वर्शिप में बाद में तब्दील हो जाता है, ठीक है, तो उसके वजह से शायद ये एक्सेप्ट कर रहे थे शैविज्म को, शायद. दूसरा इंसिनुएशन ये होता है कि चेरास, जिनके यहाँ पर मेगालिथ कल्चर नहीं था, जिनके यहाँ पर ये स्टोन वर्शिप नहीं था, तब यहाँ पर वैष्णविज्म या पर्टिकुलरली विष्णु वर्शिप को ज्यादा महत्व दिया गया है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स दैट यू विल गेट ऑफ लॉर्ड विष्णु, फॉर एग्जाम्पल पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, पद्मनाभम का आपने नाम सुना होगा, or Sabrimala, etc. The temples, largely dedicated to Vishnu cult or the Vishnu worship, is concentrated not in Tamil Nadu but in the Chera regions of Kerala. तो वो एरिया विष्णु को अपना रहा था और तमिलनाडु वाला एरिया शिव को अपना रहा था. Also because the Cheras and the Pallavas and the Cholas were politically against each other, so the symbols of the state happened to become those gods, and they also became, religiously against each other. In fact, South Indian temple tradition is the only temple tradition which will have not any kind of पंचायतन स्टाइल. तो पंचायतन स्टाइल आपको नहीं मिलेगा, जहां पर जरूरी है ही नहीं कि एक गर्भगृह के नीचे 4 डीटीज हों. साउथ इंडिया में ये परंपरा नहीं है. पंचायतन स्टाइल ऑफ परंपरा इज देयर इन नॉर्थ इंडिया ओनली. एंड हेंस एक ज़माना ये होता था कि अगर आप शैव भक्त हैं, अगर आप शिव भक्त हैं और आपके घर में विष्णु की मूर्ति मिल जाए तो खून हो सकता है खराबा, मतलब आपका उस बेसिस पे मर्डर हो सकता है. इट्स एज गुड एज सेइंग दैट यू आर अ हिंदू बट यू आर प्रैक्टिसिंग नमाज. मतलब ये हो सकता है कि आप दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे हैं. इतनी ज़्यादा तनातनी थी बिटवीन शैविज्म एंड वैष्णविज्म in South Indian, uh, if I would say, society and dynasty. Also to the fact, you can add that आप इसे बाद में भी देखते हैं इन द मिडीवल टाइम पीरियड, जब भक्ति पीरियड काल आता है, फिर भी ये डिवीजन बना रहता है बिटवीन अलवर सेंट्स एंड बिटवीन नयनार सेंट्स. तो फिर जब नयनार सेंट्स आते हैं तो वो शिव भक्ति करते हैं. देयर आर 63 in number, and they make their own statues and they have their own traditions and they have their own literature also. और वैष्णव सेंट्स जब होते हैं, जिसको आप अलवर सेंट्स कहते हैं, वो जब आते हैं, very important being Andal out there, they are very less in numbers but they are mostly concentrated in the Chera region, who don't make statues of their own. जो उनके statues आपको नहीं मिलेंगे, उनके आपको सिर्फ टेक्स्ट्स मिलेंगे. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि दो पर्टिकुलर रीजन दो भगवानों को कैसे बांट रहे हैं, एंड नॉर्थ इंडिया इन सबको कैसे एक कर रहा है. सो बेसिकली संस्कृताइजेशन वाले ऐसे में श्रीनिवास ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया का ट्रेडिशन जो साउथ इंडिया में आया है वो बोरोड कल्चर है, और इनका अपना कल्चर जो था, या द्रविडियन कल्चर जो था, दैट वाज मोर इगैलिटेरियन, दैट वाज मोर ट्राइबल, and that was more sophisticated. But the coming up of caste distinctions, hierarchies and gradations
created a sort of mirroring of North Indian society in South India. A valid example for that is the Cholas. So it means at that time they also are using religion as a political tool. Yes, religion is indeed as a political tool, because when you go to the Chola temples, every Chola ruler is legitimizing himself as the servant of the god. कोई भी चोला किंग, या फॉरगेट चोला किंग, इवन चेरा किंग्स, इवन पांड्यन किंग्स, सारे किंग्स ये कहते हैं कि वो भगवान के दास हैं, दे आर द परम भक्त, दे आर द फर्स्ट सर्वेंट्स. चोला किंग अपने विशालकाय मूर्ति बृहदेश्वर टेम्पल के गेट पे रखे हुए हैं. क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि भाई आप जाएंगे टेम्पल पे तो शिव के मंदिर में माथा टेकने से पहले आप सामने देखेंगे कि राजराज चोले का इतना बड़ा मूर्ति है. तो राजराज चोला दरबार में सबसे पहले है, और उनको शिव ने वो ताकत दी है कि वो रूल कर रहे हैं. तो उनके खिलाफ साजिश करना है, शिव के थॉट्स के खिलाफ साजिश करना है, या शिव के आज्ञा के खिलाफ साजिश करना. दिस इज नथिंग बट अ डिवाइन थियरी ऑफ किनशिप, that you legitimize your political position in the name of gods, and that every South Indian king was doing, by the way. So what is the process of deification? Deification process is when you become a deity. So for example, the Pandyan queen Meenakshi has become a deity. ठीक है. अब वो पांड्यन वॉरियर क्वीन है मीनाक्षी, मीनाक्षी अम्मन. एंड मीनाक्षी अम्मन का मैं आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है मीनाक्षी अम्मन की, बिकॉज वो आपको बताती है द प्रोसेस ऑफ डेटिफिकेशन, विच इज़ द प्रोसेस की एक क्वीन प्रिंसेस कैसे डीटी बन गई, और उनके थ्रू कैसे शिव जो हैं वो इंटीग्रेट हो गए. There is a very good book of that written by Manu Pillai, although it's in it's a story format. ठीक है, वो स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी आपको बताता है. I think I have that book. एक yes, it is here. Just a second, guys. So this is the book. It's a very good book. Tales from Indian History: The Courtesan, the Mahatma, and the Italian Brahmin. It is by Manu Pillai. Manu Pillai is a very good writer about South Indian history. And इसमें उन्होंने मीनाक्षी अम्मन की स्टोरी बताई है, that how he tells a lot about South Indian history. But I'll just let you, because you asked me about मीनाक्षी द फर्स्ट वॉरियर. ठीक है, तो इसमें 87 में, जस्ट अ सेकेंड, see, this is the picture of Meenakshi. Can you all see this? Yes, please. ये पिक्चर मिलता नहीं है हमें, बिकॉज दिस इज अ पेंटिंग आउट देयर. ठीक है, ये पिक्चर हमें मिलता नहीं है. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू क्लिक द पिक्चर्स एंड ऑल देयर. बट शी इज अ वॉरियर प्रिंसेस फ्रॉम द पांड्यन डायनेस्टी. पांड्यन डायनेस्टी की वॉरियर प्रिंसेस है, एंड इनकी ही टेम्पल अब शिव के साथ बताई जाती है. एंड ही हैज स्टार्टेड द चैप्टर एज द फर्स्ट वॉरियर. मीनाक्षी इज द फर्स्ट वॉरियर आउट हियर. ठीक है. नाउ although I would love to read you this book, but I mean this chapter, which is just 3 chapters, but it tells you about a story of a Puram. Okay, a story of a androgynous queen who has 3 breasts. मीनाक्षी अम्मन की स्टोरी ऐसे ही जा रही है. They were married. The rest of the poems: with a powerful, formidable army, Meenakshi set out from Madurai. Indra, the lord of heavens, fled at the very sight of his foe, and nobody laughed any more at the third nipple. Soon the conqueror climbed the Himalayas to battle Shiv, but when the fish-eyed one gazed upon him, the third breast disappeared, and she became a regular woman, or as the poem tells it, that she became bashful, passive, and fearful. She leaned unsteadily like the flowering branch of a tree under the weight of blossoms. Her dark, heavy hair fell on her neck.
Soon they were married. The rest of the poem shows Shiva as its hero, pulling the strings where once his wife has had. It is interesting how Tiruvaliyad Puranam seeks to establish his power almost as to compensate for the reality that was superior to his wife. To this day, it is Minakshi who is worshipped first, not Shiv, even when in theory he is head superior. So this story is so interesting because Shiva is teaching a lesson to Indra, because इंद्र जो है ही इज अ वैदिक deity, लेकिन वैदिक deity को चैलेंज करके शिव ही उसे जीत सकते हैं. एंड बिकॉज इंद्र इज हैविंग अ लॉट ऑफ eye on the dynasty of Meenakshi, who is not even a proper woman, as it is told that she is an androgynous woman. Or in contact with Shiv, she becomes a regular woman. In contact with Shiv, she defeats Indra, and in contact with Shiv, she becomes a deity. एंड देन शिव इज ऑल्सो बॉट टू साउथ, तो शिव को भी साउथ में लिया गया है, लाया गया है. सो दैट is the process of basically deification or deification, as you asked. And this is the process which you also call it as sanskritization, कि नॉर्थ की स्टोरीज साउथ में इस प्रकार से जाती है. You have to marry the traditions from north to south India. So you need some bridges, you need some stories to weave in. So that is how it goes. Able to understand? Yes, please. Sir, Nilkant men was found in Mesopotamian civilization. Nilkant men. I have not heard about it. नीलकंठ इज एन एपिथेट ऑफ शिवा. ठीक है, नीलकंठ जो है वो शिव की एपिथेट है. हाँ, स्टोरी बहुत अच्छी है. इनफैक्ट दिस बुक इज ऑल्सो वेरी गुड. इट गिव्स यू अ वेरी क्विक रीड. बहुत छोटा छोटा रीड है. 2-3 पेजेस की स्टोरीज हैं, एंड इट मोस्टली टेल्स यू द स्टोरीज ऑफ साउथ इंडिया. सो साउथ इंडिया की ये काफ़ी अच्छी किताब है अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, या हिस्ट्री की थोड़ी सी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो दिस मनु पिल्लई's बुक इज वेरी गुड. ठीक है, अगर टाइम मिले तो आप लोग देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज चैप्टर्स लाइक व्हाट इफ विजयनगर हैड सर्वाइव्ड, अ मुस्लिम deity in a Hindu temple, a Maratha princess morality play, an Italian Brahmin of Madurai, uh, a city for a courtesan, Dara Shikoh, poet among warriors, lost Begum of Ahmednagar, the story of Kama Sutra, sultans and padshahs, Alauddin Khilji ruling by sword, the courtesan who became a princess, Mirabai in a different flavor, uh, Varaha Ruchi, children and Mapilas of Malabar. So, he has a lot of stories which is there. एंड ऑल्सो फ्रॉम मॉडर्न इंडिया. तो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा है, बट एंशियंट इंडिया वाला पार्ट पढ़ा है. तो थैंक्स फॉर टुडे. आई थिंक आज मैं ये पार्ट पढ़ लूंगा. टुडे आई एम थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आई अगेन रिविजिटेड दिस बुक. सो आई एम फीलिंग अ बिट ओके टुडे. इटालियन ब्राह्मण क्या है? इटालियन ब्राह्मण इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. इटालियन ब्राह्मण इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन who comes during the Sangam age to Madurai region. So बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है मदुरई रीजन के बारे में. दिस इज द इटालियन ब्राह्मण ऑफ मदुरई in the court of Senda Mangalam. ठीक है, as it is said. And एक रामचंद्र नायक थे लॉर्ड, जिन्होंने इसे कन्वर्ट किया. आफ्टर स्पेंडिंग अ रिस्पेक्टेबल टाइम देयर, he gets the governor's friendship, और उसके बाद में he claimed to descend that he came from the Holy Roman Emperor Otto the Third. तो होली रोमन एम्परर ने इस व्यक्ति को भेजा था, इस इटालियन ब्राह्मण को भेजा था. दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट अगेन रोमन ट्रेड, बट विद अ ट्विस्ट. आप अभी तक स्टोरी पढ़ रहे थे अबाउट रोमन ट्रेडर्स, बट अमॉन्ग दोज रोमन ट्रेडर्स कोई एक ब्राह्मण भी बना होगा, तो इसी की स्टोरी है.
So he's saying that मैं Otto the third के वहां से आ रहा हूँ. As the eldest son of this house, Roberto was expected to carry on the line, but by adolescence he had acquired quarreling with his parents and announced a desire to leave the Catholic Church. He fled in disguise to Naples, obtained a theological education before setting sail to India. The journey was not smooth. Shipwrecked, and months were lost in Mozambique. But as he arrived in Goa, thereafter quickly moving to Cochin and looking at the port of Muziris, he accustomed to go towards Madurai. तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि मुजरीज का पोर्ट मैंने देखा, और जब देखने के बाद मुझे लग रहा था कि ठीक है, पुहार इज अ मच बेटर रीजन और पुहार इज अ मच बेटर प्लेस, देन ही गोज टूवर्ड्स देयर. And then how he converts and what are his thoughts and beliefs. रामचंद्र नायक जो उस प्रिंसिपैलिटी के लॉर्ड थे, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड थे, उन्होंने क्या कहा उसे एक्सेट्रा, उसकी स्टोरी है. एंड हाउ ही कन्वर्ट्स एंड बिकम्स इटालियन ब्राह्मण, उसकी ये स्टोरी है. और ये इटालियन ब्राह्मण का वो तस्वीर है जो ये दिखा रहे हैं. ओके, सो गुड स्टोरीज विच टेल्स यू. अब आप फैक्ट पढ़ते हैं, अब अगर ये आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ठीक है, फैक्ट के बीच में स्टोरीज है कि इटालियन ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि भैया रोम से ट्रेड हो रहा है. रोम से ट्रेडर्स ही नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोम से आउटकास्ट होंगे, भगाए गए होंगे, जो वहां पे फिट नहीं आते होंगे, तो यहाँ पर आकर क्रिश्चियनिटी छोड़कर ब्राह्मणिकल रिलीजन में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, और उसी की स्टोरी है. सो इट्स गुड स्टोरी, फैसिनेटिंग स्टोरी. Sir, please repeat the name of the book. The book is The Courtesan, Mahatma and the Italian Brahmin by Manu Pillai. ठीक है. But आप लोग the book मेन बुक पढ़िए. ठीक है, योर आइडिया इज टू क्लियर यूपीएससी. ठीक है ना. हाँ, लेकिन शौक होना चाहिए जिन लोगों को थोड़ा बहुत शौक है. आई सी मुझे यूपीएससी देना नहीं है. सो अलॉन्ग विद द मेन बुक आई रीड नंबर ऑफ बुक्स दैट हेल्प मी अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. और मेरा काम है थोड़ा बहुत आपको बता देना सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. ठीक है, सिर्फ फैक्ट फैक्ट पढ़ते रहते हैं हम लोग तो मज़ा नहीं आता है ना. सो दैट इज द थिंग अबाउट इट. ठीक है. Sir, is this a book available online also? I don't know. I don't know about that. Maybe आजकल तो सारे किताब ऑनलाइन होते ही हैं अवेलेबल. ठीक है. Yes. Any other question from Sangam literature, from the Sangam age, guys? और कोई क्वेश्चन है संगम एज से? Any other question from the Sangam age? Yes. Okay. So if there is no question, then आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखेंगे बिकॉज today I unfortunately don't have the PPT of Gupta. ठीक है, तो गुप्तास का PPT मुझे अभी तक मिला नहीं है. ठीक है, आई वॉज वेटिंग सिंस मॉर्निंग, बट कंटेंट टीम के वहाँ से आया नहीं है. सो हम मंडे से नया टॉपिक शुरू करते हैं. ठीक है, दैट इज द गुप्तास एंड विल सी. हम लोग देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक एंशियंट हो जाए. आफ्टर दैट विल बिगिन विथ मिडीवल, और मिडीवल में एक हफ्ता और लगेगा. सो बाय दैट विल फिनिश आवर, ठीक है, सिलेबस. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे देन. सर नहीं, प्लीज थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए गुप्तास का. आई कैन टीच गुप्तास. देखो मुझे, मैं पीपीटी के बिना मैं गुप्तास भी पढ़ा सकता हूँ. पीपीटी के बिना कोई मुझे पीपीटी के साथ ही पढ़ाना है ज़रूरी नहीं है. तो मैं आई कैन डेफिनेटली गिव यू ओवरव्यू. बट ये है कि सम पीपल विल नॉट लाइक इट, है ना. पीपीटी सामने रहता है तो आप देखते हैं या पढ़ते हैं. अगर मुझे ओवरव्यू देना है तो आई कैन गिव यू जस्ट लाइक दैट. ओवरव्यू इज दैट the Guptas, which come from around 3rd century AD से लेके 5th century AD तक, till the end of 5th century you have the Guptas out there. The most starting of the Guptas are Shri Gupta, Ghatotkacha Gupta, but they are not that important.
who are important to us are the greater Guptas like Chandragupta, Samudragupta, Chandragupta the second, Samudragupta, and then Kumaragupta, Skandagupta, etc. ये कुछ ऐसे गुप्तास हैं जो हमारे लिए important है. What is more important for us in the Gupta time period is their literature. Although we know that economic conditions of Guptas were not as strong as the Kushans, but the Guptas as such featured what you call as political imbalance in the northwestern region because of हुन्स के वजह से, और वो भी स्कंदगुप्त के रेन के साथ में हुन्स के वजह से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में काफी अटैक्स हो रहे थे जो उनको पॉलिटिकली डिस्टर्ब कर रहा था. लेकिन कल्चरली ये रीजन, ये टाइम पीरियड इतना रिच है कि इस टाइम पीरियड में वराह मीर है, you have Kalidas, you have Aryabhatta, you have the coming up of Amar Simha, you have Dhanvantri, you have Shanku, and Kamandak. So literature wise, this region is rich. At the same point of time, this dynasty is compiling epics, Ramayana, Mahabharata, Vrich कालिदास के सारे एपिक्स, मेघदूतम. तो कल्चरली इस रीजन का पैरेलल कोई नहीं है. Judiciary is the most evolved. You have you have Narad Smriti, Yagnevalk Smriti coming up at this time period. Narad Smriti, in fact, the first treatise जो है वो आपको स्त्री धन के बारे में कंसेप्ट दिखा रहा है. Yagnevalk Smriti for the first time is telling you about the laws of inheritance. तो laws के बेसिस पे भी ये काफी इवॉल्व टाइम पीरियड है. दूसरा जो मैं बोलने वाला था, मेटलर्जिकल साइंस, the science of the best bronze sculpture in the world, the best iron sculptures in the world, in entire ancient India. In fact, I would like to say the art of making bronze and the art of making iron was unparalleled in the Gupta time period, जो इनके साथ रहा और इनके साथ ही गायब हो गया. उसके बाद में हम उसे वापस भी नहीं देखते हैं. You have two specimens. One is Mehrauli iron pillar and the other is Sultanganj bronze Buddha. दोनों ही आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर किया है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं. So the Guptas were indeed, but only thing that we have to see is political debate क्या है, why they were politically not the golden age. तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है that is Guptas the real golden age, because पहले के historians ये बोलते थे कि Guptas golden age है. Are they real golden age? What do you call by golden age? So politically they are challenged, economically they are challenged, but culturally and classically in the literature wise sense they are not. So classical literature तो है या classical period है, लेकिन literature के terms में है, culture के terms में है, religion के terms में है, वैष्णविज्म आ रहा है, वापस शक्ति कल्ट आ रहा है, बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो रहा है, जैनिज्म पीछे जा रही है, and temple building shuru ho rahi hai at the Gupta time period. So in all these terms they are golden age, but not in the terms of polity and economy. This is what you have to basically learn. आपको बस यही समझना है गुप्ता टाइम पीरियड. ठीक है, मैंने ओवरव्यू दे दिया है आपको. अब हम मंडे को स्लाइड्स के साथ करेंगे. ठीक है, क्लियर? If you have any other question, I am here. Yes. अगर और कोई क्वेश्चन है, then I'm here. You can ask me. Yes, please. बर्मिंगम म्यूजियम में है गुप्ता का सुल्तानगंज बुद्धा. It's there. Yes. Anything else, guys? Fine. So if there is no other question, let us break for today then. And हाँ, हम वकाटक्स भी पढ़ेंगे. Yes, we'll also study वकाटक्स. We'll also do that.
ठीक है, फाइन. Yes, so ठीक है, then this is all for today then guys. Okay, take care. We'll meet on Monday. Take this time, revise, study. ठीक है. Sir, Oxford R.S. Sharma and NCRT R.S. Sharma are the same. Yeah, they are the same. They're both the same. दोनों same है. Okay, guys. Thank you. Take care. So, do we have to supplement R.S. Sharma with another book? दृष्टि, आइडियली स्पीकिंग आर एस शर्मा से 40% क्वेश्चन तो हो जाएंगे. बाकी के क्वेश्चन एंशंट से आ रहे हैं, उपिंदर सिंह से. तो मैं आपको ऑनेस्टली अगर ये बताऊं कि सिर्फ आर एस शर्मा पढ़कर आपका काम हो जाएगा क्या? आर एस शर्मा पढ़कर अगर आपका हिस्ट्री में इनिशिएशन नहीं है तो काम हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस आर एस शर्मा तक लिमिटेड नहीं है. क्वेश्चंस उपेंद्र सिंह से आ रहे हैं. तो पहले अपना बेसिक प्रिपेयर कर लीजिए आर एस शर्मा से, एंड देन यू कैन नॉट रीड कवर टू कवर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दूसरे किताब से वो आप कर सकते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, फाइन. ठीक है, देन विल मीट ऑन मंडे. ठीक है, थैंक यू.